जोयल, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे जोयल 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, और फिर हम पढ़ेंगे हिंदी में DSI बाइबल में से योएल नबी की पुस्तक 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय। पहले हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे जोएल 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। पिता, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको वचन के महत्व सिखाया। यही वचन है, जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने अंदर की गलती को देख पाते हैं, हमारे अंदर सुधार आने की हम चेतावनियों को सुनते हैं, और उस चेतावनियों के डर के साथ हम परमेश्वर आज्ञा पालन करना सीखते हैं, और हमारा चरित्र उत्कृष्टता में बदल जाता है, और सफलता और प्रभावशाली हमारा हिस्सा बन जाता है। थैंक यू फादर। ये वचन पढ़ते समय पवित्र आत्मा बात ही नहीं रहती है कि हम कुछ कर पाए, तेरे अलावा ये तो होना असंभव है कि हम इसमें से कुछ समझ पाए। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, विनती करते हैं, सुन और कबूल कर, हमारी समझ बढ़ाइए, वचन के अंदर हमारा ध्यान बढ़ाइए, हमें वचन मनन के रूप में हमारी सोचों के अंदर उतर कर आने दीजिए, और यही हमारा चरित्र बनने में काम करने दीजिए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। चैप्टर 1 Joel, declaring sundry judgments of God, exhorts to observe them. First verse. The word of the Lord that came to Joel the son of Pethuel. Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers? Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation. That which the palmer worm hath left hath the locust eaten, and that which the locust hath left hath the cankerworm eaten, and that which the cankerworm hath left hath the caterpillar eaten. Awake, ye drunkards, and weep, and howl, all ye drinkers of wine, because of the new wine, for it is cut off from your mouth. For a nation is come up upon my land, strong and without number, whose teeth are the teeth of a lion, and he hath the teeth of a great lion. He hath laid my vine waste, and barked my fig tree. He hath made it clean bare, and cast it away. The branches thereof are made white. Lament like a virgin girded with sackcloth for the husband of her youth. The meat offering and the drink offering is cut off from the house of the Lord. The priests, the Lord's ministers, mourn. The field is wasted, the land mourneth, for the corn is wasted, the new wine is dried up, the oil languisheth. Be ye ashamed, O ye husbandmen. Howl, O ye vine dressers, for the wheat and for the barley, because the harvest of the field is perished, the wine is dried up, and the fig tree languisheth. The pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree, even all the trees of the field are withered off, because joy is withered away from the sons of men. Gird yourselves and lament. Ye priests, howl, ye ministers of the altar, come. Lie all night in sackcloth, ye ministers of my God. For the meat offering and the drink offering is withholden from the house of your God. Sanctify ye a fast, call a solemn assembly. Gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the Lord your God, and cry unto the Lord. Alas, for the day of the Lord is at hand, and as a destruction from the Almighty shall it come. Is not the meat cut off before our eyes? Yea, joy and gladness from the house of our God.
The seed is rotten under their clods. The garners are laid desolate. The barns are broken down, for the corn is withered. How do the beasts groan? The herds of cattle are perplexed, because they have no pasture. Yea, the flocks of sheep are made desolate. O Lord, to thee will I cry, for the fire hath devoured the pastures of the wilderness, and the flame hath burned all the trees of the field. The beasts of the field cry also unto thee, for the rivers of waters are dried up, and the fire hath devoured the pastures of the wilderness. Chapter 2. Terribleness of God's judgments. Joel exhorts to repentance. First verse say, Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. A day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick darkness, as the morning spread upon the mountains, a great people and a strong, there hath not been ever the like, neither shall be any more after it, even to the years of many generations. A fire devoureth before them, and behind them a flame burneth. The land is as the garden of Eden before them, and behind them a desolate wilderness. Yea, and nothing shall escape them. The appearance of them is as the appearance of horses, and as horsemen, so shall they run. Like the noise of chariots on the tops of mountains shall they leap, like the noise of a flame of fire that devoureth the stubble, as a strong people set in battle array. Before their face the people shall be much pained. All faces shall gather blackness. They shall run like mighty men. They shall climb the wall like men of war, and they shall march every one on his ways, and they shall not break their ranks. Neither shall one thrust another. They shall walk every one in his path, and when they fall upon the sword, they shall not be wounded. They shall run to and fro in the city. They shall run upon the wall. They shall climb up upon the houses. They shall enter in at the windows like a thief. The earth shall quake before them. The heavens shall tremble. The sun and the moon shall be dark, and the stars shall withdraw their shining. And the Lord shall utter his voice before his army, for his camp is very great. For he is strong that executeth his word. For the day of the Lord is great and very terrible, and who can abide it? Therefore also now, saith the Lord, turn ye now to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning, and rend your heart and not your garments, and turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and repenteth him of the evil. Who knoweth if he will return and repent, and leave a blessing behind him, even a meat offering and a drink offering unto the Lord your God? Blow the trumpet in Zion, sanctify as fast, call a solemn assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children, and those that suck the breasts. Let the bridegroom go forth of his chamber, and the bride out of her closet. Let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar, and let them say, Spare thy people, O Lord, and give not thine heritage to reproach, that the heathen should rule over them. Wherefore should they say among the people, Where is their God? Then will the Lord be jealous for his land and pity his people.
Yea, the Lord will answer and say unto his people, Behold, I will send you corn and wine and oil, and ye shall be satisfied therewith, and I will no more make you a reproach among the heathen. But I will remove far off from you the northern army, and will drive him into a land barren and desolate, with his face toward the east sea, and his hinder part toward the utmost sea, and his stink shall come up, and his ill savour shall come up, because he hath done great things. Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things. Be not afraid, ye beasts of the field, for the pastures of the wilderness do spring, for the tree beareth her fruit, the fig tree and the vine do yield their strength. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month. And the floors shall be full of wheat, and the fats shall overflow with wine and oil. And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the canker worm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you. And ye shall eat a plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. And ye shall know that I am in the midst of Israel, that I am the Lord your God, and none else, and my people shall never be ashamed. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit, and I will shew wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and the terrible day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call. Chapter 3. God's judgments against the enemies of his people. His blessing on the church. For behold, first verse, in those days and in that time, when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem, I will also gather all nations, and will bring them down into the valley of Jehoshaphat, and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and parted my land. And they have cast lots for my people, and have given a boy for an harlot, and sold a girl for wine, that they might drink. Yea, and what have ye to do with me, O Tyre and Zidon, and all the coasts of Palestine? Will ye render me a recompense? And if ye recompense me, swiftly and speedily will I return your recompense upon your head. Because ye have taken my silver and my gold, and have carried into your temples my goodly pleasant things. The children also of Judah and the children of Jerusalem have ye sold unto the Grecians, that ye might remove them far from their border. Behold, I will raise them out of the place whither ye have sold them, and will return your recompense upon your head, and I will sell your sons and your daughters.
into the hand of the children of Judah, and they shall sell them to the Sabeans, to a people far off, for the Lord hath spoken it. Proclaim ye this among the Gentiles, prepare war, wake up the mighty men, let all the men of war draw near, let them come up, beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Assemble yourselves and come, all ye heathen, and gather yourselves together round about thither. Cause thy mighty ones to come down, O Lord. Let the heathen be wakened and come up to the valley of Jehoshaphat, for there will I sit to judge all the heathen round about. Put ye in the sickle, for the harvest is ripe. Come, get you down, for the press is full, the fats overflow, for their wickedness is great. Multitudes, multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining. The Lord also shall roar out of Zion, and utter his voice from Jerusalem, and the heavens and the earth shall shake. But the Lord will be the hope of his people, and the strength of the children of Israel. So shall ye know that I am the Lord your God, dwelling in Zion, my holy mountain. Then shall Jerusalem be holy, and there shall no strangers pass through her any more. And it shall come to pass in that day that the mountains shall drop down new wine, and the hills shall flow with milk, and all the rivers of Judah shall flow with waters, and a fountain shall come forth of the house of the Lord, and shall water the valley of Shittim. Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness, for the violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land. But Judah shall dwell forever, and Jerusalem from generation to generation. For I will cleanse their blood that I have not cleansed, for the Lord dwelleth in Zion. Thank you, Jesus. Ribanta kabaraka sharabike siralurabakasa. अदीन किन बिरखेलुरबा अकासिया खूब लगा रहा सा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपके महान सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे परमेश्वर, आपने ये वचनों के अधीन लाकर खुदा हमारी सहायता की, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम हिंदी में पढ़ेंगे। इन्हीं वचनों को योएल नबी की पुस्तक, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। Ribian se kial rahase Ridane kianze iasto Red ora se giant alra। योएल नबी की पुस्तक, पहला अध्याय, पहले वचन से। यहोवा का वचन जो पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है, टिड्डियों के द्वारा विनाश। दो वचन से आगे, हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों से कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो, और वे अपने बच्चों से, और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे यलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ यलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। हे मतवालो, जाग उठो और रोवो, और हे सब दाख मधु पीने वालों, नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। देखो,
मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत है। उसके दांत सिंह के से और दाढ़ें सिंहनी की सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफ़ेद हो गई है। जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि और न अर्घ आता है। उसके टहलुए जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया, नया दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। हे किसानों, लज्जित हो। हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है, दाख लता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड़, सेब वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रोवो। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन के में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसके दुहाई दो। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सुने पड़े हैं, खत्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे कराहते हैं? झुंड के झुंड गाय बैल विकल है, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही है। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वन पशु भी तेरे लिए हांफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई। टिड्डियां प्रभु के दिन की चेतावनी के रूप में। 2 अध्याय पहले वचन से। सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगी। उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारों के घोड़ों के समान दौड़ते हैं, सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, या खूंटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पांति बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूरवीरों के समान दौड़ते और योद्धाओं के भांति शहर पनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पांति से अलग न चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहर पनाह पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा
और अति भयानक है, उसकी कौन सह सकेगा। हालेलुया। मैंने हमेशा बोला है आपको, परमेश्वर के सामने जो सेना परमेश्वर भेजता है हमारी सहायता के लिए, उसका सामना कोई शैतान की शक्तियाँ, कोई जगत की शक्तियाँ, कोई भी किसी भी प्रकार का इस संसार के अंदर, विश्व के अंदर कुछ भी रहे, वो सामना नहीं कर सकता है परमेश्वर का। ओके, तो ये सेनाओं का देख लो, कैसा सेना था ये। सदोम गमोरा को नाश करने के लिए कैसा सेना भेजा था उसने, आग की बमबारियां भेजी थी, है ना, और पत्थर के बारिश भेजे थे उसने। आप समझ नहीं सकते हमारा परमेश्वर क्या करेगा और क्या नहीं। ओके, जब उसने ले लिया दिमाग के ऊपर तो ले लिया फिर। ओके, तो इसके लिए आपको परमेश्वर की तरफ से बहुत ज़्यादा गंभीर रहना है, क्योंकि उसकी सेना ज़्यादा सामर्थ्य है, बाकी सब कुछ के ऊपर ज़्यादा चढ़ाई से बल के साथ हमारे सहायता के लिए रहती है। ओके, पश्चाताप करने का आह्वान 12 वचन से आगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई न होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। परमेश्वर की दया। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। आत्मा का उंडेला जाना। 28 वचन से आगे। उन बातों के बाद
मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। हालेलुया। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर का वचन है। ये यीशु मसीह के आगमन के बारे में दिया गया है। वो समय अब है और हम प्रार्थना करते हैं और छुटकारे पा रहे हैं। सब परमेश्वर का प्रार्थना करने वाला वीर इस समय में बहुत ज़्यादा काम करेगा। परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा। 3 अध्याय पहले वचन से, क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊँगा और वहाँ उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर दाखमधु पिया है। हे सोर और सीदोन और पलिश्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी है और यहूदियों और यरूशलेमियों और कि यूनानियों के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाएं। इसलिए सुनो, मैं उनको उस स्थान से जहाँ के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूँ और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और वे उनको शबाइयों के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है, जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने की को चढ़े, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसियों को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। ये आखिरी दिनों का समय अभी का, ओके। हम लोगों के लिए अब कमज़ोर अवस्था मायने नहीं रखना चाहिए। सब कुछ को रौंद कर हमने परमेश्वर की ताकत में चढ़ जाना है। अभी का ये समय चल रहा है, ओके। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहाँ ले जा। समझ में आ रहा है आपको? तो हम क्यों रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को फैला रहे पास्टर क्रिस ओयाखिलोम? क्यों हमारा सुसमाचार का समय इतना तेज बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम इकट्ठे कर रहे हैं लोगों को, ओके। और कैसे इकट्ठे करें? आराम से नहीं, फुर्ती के साथ, ओके। जल्दी लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि समय ख़त्म होने पर है। बाद में आपको परमेश्वर का जो वचन के अनुसार उद्धार का समय रहता है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जल्दी समय के ख़त्म होने के पहले हम काम किए जा रहे, प्रार्थना किए जा रहे, उपवास किए जा रहे, लोगों को सुसमाचार दे रहे, वचन समझा रहे, आने वाला समय समझा रहे, है ना। तो 2 अध्याय में तो ओपनली लिखा है कैसा चिन्ह भी दिखाने वाला है। आप रेनबो देखते हैं ना आसमान में, वो रेनबो क्या है? आप उत्पत्ति के किताब में जाकर देखिए, वहाँ पर नूह को दिया गया चिन्ह है वो, ओके। 6 अध्याय में
आई थिंक 7-8 अध्याय में है, शायद से 8 अध्याय में है। ओके, नूह को दिया गया चिन्ह है कि वो दोबारा कभी ऐसा पानी का बाढ़ नहीं भेजेगा जिससे नाक में श्वास जिसके है वो सब मारे जाएंगे। इस प्रकार का बाढ़ वो दोबारा नहीं भेजेगा। ये वायदा उसने किया है नूह को। ओके, तो ये वायदा का जो ध्यान रखने का चीज उसने दिया वो रेनबो है। यीशु मसीह ने वायदा किया है कि वो लौट कर आने वाला है। उस वायदे को हमने ध्यान रखने के लिए उसने प्रभु भोज दिया है। ओके, ताकि हम वो स्मरण रखें कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। जब भी हम वो प्रभु भोज को लेते हैं तो हम स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आने का वायदा किया है हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा काम अभी चल रहा है फुर्ती के साथ। तो भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा, जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाए और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदो क्योंकि हौज भर गया है। रस कुंड उमंडने लगे और क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। तिबटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि तिबटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगे। देखो, अब ये जो जादू टोना ये सब करते हैं, कहाँ से ताकत लाते हैं? वो चांद और सूरज ही के अंदर से तो ला रहे वो, है ना। वो सब देखो अब क्या बोला है, किसका कंट्रोल है उसके ऊपर? परमेश्वर का है। और क्या चाहिए आपको? प्रूफ कि परमेश्वर यहोवा के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं। और क्या चाहिए आपको सुनने के लिए, है ना। फिर भी लोग जादू टोना नहीं छोड़ते, फिर भी शक्तियों को लाना नहीं छोड़ते हैं, है ना। क्योंकि ये सब कुछ जो है, ये शक्तियों का लाने का जरिया यही तो यूनिवर्स के अंदर के प्लैनेटरी सिस्टम्स में से वो ला रहे हैं। ओके, आसमान में से ला रहे, नहीं तो कहाँ कहाँ पानी में से ला रहे, ज़मीन में से ला रहे, धूल मिट्टी में से ला रहे, और कहाँ से ला रहे? जंगलों में से लेकर आ रहे, लकड़ियों में से लेकर आ रहे। हाँ, क्या फ़ायदा है? परमेश्वर कहता है ये सब कुछ मेरे नियंत्रण में है और मैंने ठहरा दिया उनका सारा खात्मा कर देने का। क्यों तुम लोग पागल बनते हो उसके पीछे जाकर? हाँ, पावर की क्या बात है? पावर पावर है, वो अपना अपना काम कर रहे, छोड़ दो उनको। आप क्यों लेकर आ रहे अपने चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए? आप परमेश्वर को पहचानो। परमेश्वर पावर देने वाला परमेश्वर है। आपको कौन से बात के लिए चाहिए? अगर आप गलत काम, अधर्म काम का पावर परमेश्वर से मांगेंगे, आपको नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलता है तभी जाके आप यूनिवर्स के अंदर के पावर्स को यूज़ करते हैं, है ना। क्योंकि वो ही पावर से जो आपको चाहिए मन चाहिए बातें दे देते हैं। लेकिन आप परमेश्वर की तरफ आएंगे तो ऐसे गंदे काम करने के लिए पावर्स नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ये क्या फ़ायदा है? परमेश्वर क्या कर रहा है? उसको बाद में ख़त्म करने जा रहा है ये सब कुछ। तभी आप क्या करोगे? मुंह के बल गिर जाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे, है ना। क्या फ़ायदा है ना ये सब करके। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना, ये सारे यूनिवर्स के अंदर हो रहे सारे पावर्स व्यर्थ जाने वाले हैं। सिर्फ परमेश्वर एकमात्र जो धन्य परमेश्वर है, धार्मिकता के जीवन के लिए रास्ता देता है, सच्चाई में चलने का रास्ता देता है और उसका पावर अच्छे भले काम करने के लिए देता है वो। ठीक है, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। 16 वचन से आगे, यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किए रहता है वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे। उस समय पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे। और यहोवा के भवन में से एक सोता फुट निकलेगा जिससे शित्तीम की घाटी सींची जाएगी। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजाड़ हुआ मरुस्थल हो जाएगा। देखा दुष्ट का अंत कैसा है? वो क्या हो जाएगा? मरुस्थल हो जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, उजड़ा हुआ हो जाएगा।
हालेलुया। तो वो देखो, आपके खुद के फैसले काम नहीं करेंगे, आपको यीशु ने कैच करना चाहिए। अगर यीशु आपको कैच नहीं करता है तो हम लोगों का जिम्मेदारी बनता है आपको परमेश्वर के वचन सिखाना। जिम्मेदारी बनता है कि आपको यीशु कैच करे ऐसी प्रार्थना को करना, ऐसे वचन को आप तक पहुंचाना लाउड स्पीकर लगा के। ओके, होम थिएटर के स्पीकर बॉक्स बाहर रख के आपको सुनाना पड़ता है, भाई सुनो, ओके ये वचन है। क्यों पता है? क्योंकि आपके ऊपर यीशु मसीह खुल नहीं रहा है, अपना काम वो आपके ऊपर दिखा नहीं रहा है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको लेकर आते हैं, वचन सामने लेकर आते हैं, ताकि आपको वो आईना दिखाई दे, यीशु मसीह दिखाई दे, ताकि यीशु मसीह आप देख पाए, यीशु मसीह आपको पुकार रहा है आप समझ पाए, और यीशु मसीह का आप स्वीकार कर सके। और अशुद्ध काम का बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, फिर भी आप उसको छोड़कर पीछे चले आएंगे और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का, पवित्र शक्ति का काम आप सीखोगे और परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओगे। शक्ति चलाना परमेश्वर को भी आता है और परमेश्वर खुद शक्ति देता है। उसने मूसा को शक्ति दिया था, हाँ, लेकिन किसी के प्राइवेट पार्ट को मारने के लिए नहीं दिया था। ओके, मूसा को शक्ति इसलिए नहीं दिया था कि जाकर वो किसी का सत्यानाश करे। मूसा को शक्ति इसीलिए दिया था, देख अगर फिरौन नहीं मानता है तो उसको ये चमत्कार दिखा, क्योंकि वो शक्ति पे भरोसा करता है। ओके, तो शक्ति के अनुसार वो परमेश्वर को पहचानता है। ठीक है, तो अगर शक्ति दिखाएगा तो उसको समझ में आएगा कि मूसा सच कह रहा है, कि इसको कोई तो परमेश्वर ने भेजा हुआ है। समझ में आया? तो आपके शक्तियाँ जो काम करती है वो गंदे कामों का है, दुष्ट कामों का है, ओके, चोरी नाश घात कामों का है। लेकिन परमेश्वर की ओर से जब शक्ति मिलती है आप अच्छे काम करोगे। ओके, आप परमेश्वर के भले भले कामों में ऊंचे जाते रहोगे। तो शक्ति का प्रभाव हमारे पास उपद्रव करने के लिए नहीं है, लेकिन जब उपद्रव करने की शक्तियाँ आप इस्तेमाल करेंगे, आपका भविष्य यहाँ पे लिखा हुआ है, उजाड़ हो जाएगा, हाँ, उजड़ा हुआ हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा, कोई फ्यूचर नहीं है आपके लिए, है ना, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी, है ना। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सियोन में वास किए रहता है। हालेलुया। तो आप अगर देखेंगे कोई शैतान की शक्तियों को इस प्रकार से इस्तेमाल करता है कि आपको पगला देगा, ठीक है, पगला देगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपके पास वो शक्ति है। लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं, मसीह लोग क्या करते हैं, जो पवित्र जाति है वो क्या करते हैं, उस पगलाने वाली अवस्थाओं में से बाहर निकलते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर बाद में परमेश्वर के काम करने में जुट जाते हैं। हाँ, तो क्या हमारे पास तुम्हारे जैसे दूसरी दुष्टता करने के लिए शक्ति को ढूंढने जाते हैं क्या हम? नहीं। ओके, तो फिर तुम लोग क्या करेंगे, मतलब जो दुष्ट आत्माओं के काम करने वाले लोग क्या करेंगे, फिर दूसरी नई चालाकी करके आएंगे, क्योंकि पहला वाला हो गया, अब दूसरा चालाकी और दुष्टता और कड़ी दुष्टता और गहरी दुष्टता, और सब खत्म 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 हो गया, फिर मार डालने का इंसान को। ओके, तो इसके अलावा क्या मिलता है, उनके दुष्टता का शक्ति काम क्या करती है, देखो। ओके, और नतीजा कुछ भी नहीं है उसके अंदर से, ना उनको फायदा है ना शक्तियों को फायदा है, कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम पास है। ओके, सिर्फ एक प्रकार का, जैसा एक किसी ने कुछ नशा कर लिया और वो झूमता है, उसको पता नहीं चलता है वो क्या तमाशा कर रहा है ना, उस प्रकार का उनका जीना है, उनको खुद को पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए परमेश्वर कहता है मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है।
हमारा मार्ग सत्य जीवन जब आपको पता चल जाता है, आपको मालूम पड़ जाएगा, तो आप ये शक्तियों का काम छोड़कर परमेश्वर की तरफ मुड़ जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आपको वचन सुनाई दे, आपको परमेश्वर मालूम पड़े, आपको वचन का प्रेम हो जाए, आपको वचन की सच्चाई मालूम पड़े, आप परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाए और गंदे काम छोड़कर परमेश्वर के अधीन हो जाए, सच्चाई के अधीन हो जाए, है ना। ये परमेश्वर चाहता है। इसके लिए परमेश्वर हमारे द्वारा हमको इस एरिया के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर हमको ऐसा मन दिया है कि हम आपके दुष्टता को देखते हैं, समझते हैं कि आप कितने गंदे हैं, फिर भी हम यहाँ पर घुटना लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हाँ, चलो आपके बारे में प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमको पता है कि हम जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उतर कर आता है, उसकी स्वर्ग की सेना उतर कर आती है और वही आपको फिर बदल देगी। आमीन। जब हम प्रचार सुनते, अकेले नहीं सुनते, हमारा पूरा बालकनी, हमारा सारा घर, रूम्स हम प्रचार के साथ भर देते हैं, ताकि जब हम अपने आप को शुद्धिकरण कर रहे होते हैं, हमारे अपने अंदर की गंदगी हटाते हैं, हमारे घर को हम शुद्ध कर रहे होते हैं, तो उस समय हम अपने घर के लिए परमेश्वर के स्वर्ग की सेना को इनवाइट कर रहे होते, वही समय वो आपको भी अटेंड कर जाएंगे। हालेलुया। तो हमारा यहाँ रुकना परमेश्वर को हमारे अंदर विजिट करने का हम केंद्र स्थान है। हालेलुया। और इसके लिए जब परमेश्वर हमारी पुकार के कारण यहाँ पर उसकी स्वर्ग की सेना भेजता है, जब वो यहाँ पहुँचते हैं, तो हमारे ही कारण फिर वो आप जो गंदे काम करने वाले लोग होते हैं, उनको भी वो परमेश्वर के वचनों की समझ आने का अनुग्रह करके जाते हैं। हालेलुया। तो हमारा यहाँ रुकना हम सब इकट्ठे करेंगे, तो फिर यीशु का काम यहाँ पर आशीष करने के लिए है, आप लोगों को बदला से बदला लेने के लिए नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप लोगों के घमंड आपको इतनी बढ़ जाती है कि आपको ऐसे लगता है, भाई हो तो हो, कुछ भी हो, बस ये तो आगे नहीं जाना चाहिए, अब ये तो इनका कैसा भी करके हमारे फायदे में कुछ ना कुछ कर देना है, उड़ा दो इनको। हालेलुया। क्योंकि आपके पास आपके बस की बात ही नहीं है हमारे तक पहुंचना। ओके, हमारे ज़िंदगी के बारे में कोई हिसाब ही नहीं लगा सकते आप लोग। तो फिर क्या हो जाता है, काइन की तरह नियंत्रण करने का एक ही रास्ता मिल जाता है, आबेल की हत्या कर दो, बस करो, बस बाकी देखेंगे बाद में। ओके, जितना फ़ायदा करना है वो सब कर लेंगे, अपना फ़ायदा, बाकी जाने दो, जो होता है करने दो। ओके, इस प्रकार के आपकी निर्बुद्धिपन है। ओके, जिसका असर क्या होने वाला है, आप खुद उजड़ जाने वाले हैं। आपका खुद का उजड़ा हुआ मरुस्थल आप अपने लिए बटोर रहे हैं, हमारा पीछा करके, है ना। तो इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह में जो लोग हम इस बाइबल स्टडी में, बाइबल रीडिंग में चल रहे हैं, हमारे अंदर का हियाव ये प्रकार से रहना चाहिए। और जो बाइबल स्टडी में अन्य जातियों में से है, जिसको वचन नहीं मालूम है अभी तक और दुष्टता करने में व्यस्त है, अगर वो इस बाइबल रीडिंग को सुन रहा है, तो उसके लिए ये चेतावनी है। आमीन। उसके लिए चेतावनी है कि तुम्हारे मन के अंदर कुछ भी रहे हमारे विरोध में, मसीहों के विरोध में, ओके, लेकिन तुम्हारा वो विरोध करना बिल्कुल मूर्खता है। हाँ, क्योंकि मूर्खता इसीलिए है क्योंकि आपको खुद को नहीं मालूम है आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप खुद को सवाल करके पूछो, क्या प्रॉब्लम है मुझे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हालेलुया। आपको मालूम पड़ेगा, ना घर के हैं आप, ना घाट के हैं। हाँ, आप कहीं के नहीं है, आप ना मनुष्य जाति में है और ना शैतान की जाति में है, आप बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। ठीक है, आपको कोई बैलेंस लाइफ नहीं है, ये आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, आप भले ही बहुत तरक्की उन्नति पाए हुए, बहुत हाई फाई टाइप होगा आपका, लेकिन फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ना घर के हैं ना घाट के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाता है
जब आप मसीहों का विरोध करते हैं या मसीहों के वचन अगर आप सुनते हैं ताकि आपके अंदर की कोई गंदी बात आपको मालूम पड़े, तो ये ही मैं आपको बता रही हूँ। आपको परमेश्वर का वचन पवित्र करता है, शुद्ध करता है और समझाता है कि आप वो शक्तियों को छोड़ दीजिए और परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ और पवित्र जीवन जीने का रास्ता चलो। पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा ले लो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, और फिर पवित्र आत्मा की शक्ति को अपने अंदर भर के परमेश्वर के वचन सीखो, पढ़ो, ध्यान करो, मनन करो और उसी के अंदर आपके जीवन का चरित्र बनाते हुए चलो। हालेलुया। तो आपके जीवन का चरित्र दुष्ट के शक्तियों के अनुसार नहीं हो सकता है। ओके, अगर दुष्ट के शक्तियाँ आपके ऊपर कुछ भी गंदा काम करे तो भी आपके पास ऐसा फ्रीडम नहीं है, स्वातंत्र्य नहीं है कि आप कुछ शक्तियों को सीखे और उनके ऊपर गंदे काम को छोड़े। नहीं कर सकते ऐसा, वो फ्रीडम नहीं है हमारे पास। ओके, जो परमेश्वर की जाति है वो दुष्ट शक्तियों की पीड़ाओं को पार करके अपने अपने भले कामों में आगे निकलती जाती है। ये मसीही जीवन है। हालेलुया। तो अन्य जातियों में से अगर आप हो, आपके लिए परमेश्वर का ये एक शुभ समाचार है कि हमने क्या करना है, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेना है, पाप से हाथ धो देना है, खत्म करना है, और वो शक्तियों का काम मालूम है कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपको खुद मर्जी करना है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, अब मैं परमेश्वर के अच्छे कामों में अपना जीवन बिताऊंगा। आपका फैसला बनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे, इन बातों में हमारी सहायता करे। नासरी यीशु मसीह के नाम में पिता, इन वचनों के अधीन कर हमको तेरे वचनों की रचना में, ईश्वरीय रचना में फिट एंड फिक्स करते हुए डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आज 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान में जॉन 20 chapter 1 verse 10 verse, 2 Chronicles 26 chapter 27 chapter। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 1 वचन से 10 वचन और दूसरे इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय 27 अध्याय हम अकेले में बैठकर इन वचनों को पढ़ने वाले। आज आपने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में देखा होगा कैसा वचन हमारा चरित्र बनाने में हमको मदद करता है। हाँ, अगर हम अकेले में बैठकर वचनों को समय देंगे तो क्या हो जाएगा, सफल होने का रास्ता हो जाएगा हमारे अंदर और उत्कृष्टता एंटर करेगी हमारे लाइफ में, प्रभावशाली हम बनेंगे। हालेलुया। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आप क्या करें तो आपकी सेहत बनेगी, आप क्या करें तो आप उत्कृष्ट बनेंगे, आप क्या करो तो आप ब्यूटीफुल बनेंगे, आप क्या करो तो आप कुछ ऐसा कलाकार बन जाओगे। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके, आपके अंदर उत्कृष्टता परमेश्वर के वचन से आता है। आप क्या करना है, परमेश्वर के वचन को अकेले में बैठ के सुधार करने देना है। हाँ, आपके गलती को आपका सामना करने के लिए वचन को आज़ादी देना है। हाँ, जब आप पढ़ते हो तो अपना गलती वो वचन के अंदर लिखे हुए शब्द आपको मालूम पड़ते, हाँ ये गलत था, मैंने तो ये किया था। तो आपने क्या किया, अपने गलती को देख लिया। ठीक है, अब उसके बारे में नतीजा भी दिखाई देता है, वो नतीजा भी बताता है वचन, क्या करेगा तो क्या होगा ये भी बताता है। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक अगर आपके लाइफ में उसका नतीजा नहीं आया है तो भी ये बात तो गारंटीड है कि वो नतीजा आपके लाइफ को दे दिया गया। हालेलुया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वो नतीजा फाइट करेगा, आपका पीछा करेगा, वो नतीजा आपको लेना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती आपके अंदर वो दे दिया जाएगा नतीजा। हालेलुया। तो इसके लिए आपने फिर तुरंत क्या करना है, माफ़ी मांगना है परमेश्वर से और बोलना है कि पिता मैं तेरे सच्चे रास्ते से चलने को तैयार हूँ, मुझे माफ़ कर, ये मुझे मालूम नहीं था, इसका नतीजा ऐसा निकलता है, अब मैं सुधार लेता हूँ अपने आप को। वही वचन आपके समझ में आने के कारण अब आपके क्रियाओं में जब आप चाल चलन चलते हो तब वो वचन के आधार से जो गलती आपको दिखाई बताया गया था उस अवसर को दोबारा आप देखेंगे, लेकिन आप उस अवसर को देखने के बाद नतीजा को याद करना है और मन फिरा लेना है, नहीं बाबा इसका नतीजा बेकार है,
चलो पीछे टर्न हो जाओ, हमको पहले तो मालूम नहीं था, अब तो मालूम है बाबा, नहीं चाहिए हमको, चलो अपना सीधा रास्ता जो है वही चुनाव करो। ओके, तो आपके लिए सफलता, उत्कृष्टता, प्रभावशाली आपका पोर्शन बन जाएगा, आपका हिस्सा बन जाएगा। आमीन। तो इसके लिए अकेले में बैठकर हमारा चरित्र बनने देना है परमेश्वर के वचन को पढ़कर। तो पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में इसे पढ़िए। निश्चित है कि ये हम अकेले नहीं समझते हैं, पवित्र आत्मा हमको समझने के लिए दिया गया है, और परमेश्वर का अनुग्रह का आत्मा निश्चित हमारे समझ के लिए, हमारी सहायता के लिए, हमने उसका लाभ निश्चित उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, पवित्र आत्मा, विनती करते हैं हमें फिट एंड फिक्स कीजिए तेरे वचनों की समझ में, और ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।